The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Uh, Good afternoon, everyone. I am Diwakar Yadav, Mutual Fund Product Manager from HDFC Securities. First of all, I would like to thank all the participants for taking out the time and joining this webinar. In today's webinar, we are going to learn about ICICI Prudential Business Cycle Fund, which is recently added in our research recommended schemes. So we will also learn about current market outlook. And to discuss these things, we have Mr. Bhavesh Sharma with us. So he's a senior product specialist from ICICI Prudential AMC. Since 2017, Bhavesh is working with ICICI Prudential AMC. Bhavesh has done his master's in finance. He has addressed many investors across locations in past 7 years. So welcome, Bhavesh. Over to you now. Thanks a lot, Diwakar. And good evening, everyone. So I hope people have already logged in and they are looking at this particular screen. So I'll be taking you through market outlook and why business cycle fund is a great recommendation for today's market scenario. So we'll directly dive into the presentation so that we understand all the aspects. Towards the end, Diwakar, do we have some time for Q&A? Yes, Bhavesh, we'll be having that. So, but towards the end, we'll try to take some of the questions that can help you to understand this fund better. So, I'll keep my language both Hindi and English. So, I hope सबको ये जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा. So, meanwhile, I would request everyone to just focus on the presentation, and here we start. So, as you can see, the topic is riding the business cycle, and the reason why we have chosen this topic, you'll see, it will soon appear. So first we will talk about how the market outlook looks like today because अगर मैं कोई भी तरीके का फंड लेना चाहता हूँ या इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मुझे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज वो फंड जो है मेरे लायक है या नहीं है. So if you see the macro snapshot, how is the inflation looking today? So inflation along with GDP numbers, these are some of the very important macro parameters जो हम लोग हर महीने देखते हैं. So if we look at the inflation levels in India, the inflation is looking quite comfortable at around 5%. RBI ने कहा है 4% का inflation उनका target है. They would like to manage this inflation plus or minus 2% फोर के 2% या तो ऊपर 2% या तो नीचे इसके आसपास. दैट्स इट. दे डोंट वांट टू गो वे बियॉन्ड 6% और बिलो 2% इन एनी सिचुएशन. तो आरबीआई कोशिश कर रहा है इसे 2% से 6% के रेंज के बीच में मैनेज करने के लिए. एंड एट 5% वी आर सिटिंग कंफर्टेबल. बट सेम कैन नॉट बी सेड फॉर ऑल द अदर countries. If you look at US, Europe, UK, you will see that their inflation is quite higher than what they are comfortable with. Especially if I look at the numbers of US at around 3%, उनका inflation उनके comfortable range से बहुत ज़्यादा ऊपर है. So their comfortable range is somewhere around 2%. So more or less, if your economic growth, ये सारे जो देश है इनके economic growth अगर 1.5-2% है, इनके जीडीपी अगर 1.5-2% से ग्रो हो रही है और वहां पर इन्फ्लेशन इससे कहीं ज्यादा है, सो इट डज नॉट हेल्प द इकोनॉमी. Whereas when we look at India, if my inflation is 5%, मेरी GDP किधर है? So if I look at the GDP data, my GDP has grown from strength to strength. You can see that the latest GDP number came around 8.4%. 8.4% is too good. If you look at the GDP quarter on quarter, इससे पहले जो आया है, that is around 7.6, 7.8%. So our GDP growth has been robust. 7% से ज़्यादा on an average हम लोग grow हो रहे हैं. Same cannot be said for the Western countries and the Eurozone. So if you look at the Eurozone, it is almost on the verge of recession. And when we talk about US, although there is a GDP growth over there, but there is also an inflation problem. So this GDP growth, we don't know कितने time तक रह सकती है, because there is a one very big hurdle to their GDP growth, and that is interest rates. So interest rate ये कई बार हमें सुनाई देता है, काफी बार हम सुनते हैं that interest rates of a particular country is being managed by their central
government. Why this happens? ऐसा क्यों करते हैं? So that there are two primary objectives. First primary objective is to control and manage the inflation. Second primary objective is to manage the growth of that particular economy, growth of that particular country. तो अगर आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो आपके दिमाग में दो चीजें हैं, या तो इन्फ्लेशन है या तो उस कंट्री का ग्रोथ है। अगर हम लोग देखेंगे इन 2022 से 2023 के बीच में यूएस ने अपना इंटरेस्ट रेट लगभग 5% से बढ़ाया है, 5%, यानी कि 500 बेसिस पॉइंट से। अगर सेम मैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक देखूंगा तो समवेयर अराउंड 450 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है, so that is 4.5%. Whereas when we talk about India, RBI has increased interest rates only by 2.5%, यानी कि 250 basis points. That's it. Overall, जिन इकोनॉमीज में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा है वहां पर उसका एक बहुत बड़ा रीजन था दैट इन्फ्लेशन वाज आउट ऑफ कंट्रोल। सो उसे कंट्रोल में लाने के लिए उनको ये कदम उठाना पड़ा। पर इसका एक साइड इफेक्ट भी है कि उन्होंने इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया कि आज वो अपनी इकोनॉमी को शायद रिसेशन में झोंक सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड अगर उनका जीडीपी डेटा कम होता गया तो इट विल बी क्वाइट एविडेंट कि उनकी इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा सकती है। इसमें आज क्या हाल है? आज अगर हम लोग यूएस देखेंगे तो देयर जीडीपी ग्रोथ इज पॉजिटिव, सो दे आर नॉट इन अ रिसेशन टेक्निकली। बट इफ आई लुक एट चाइना, China may not seem that they are in recession, but there is a lot of slowdown over there. अगर मैं थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमीज की बात करूं, विच इज जर्मनी एंड जापान, जर्मनी और जापान दोनों ही जगह पे जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव आया है, जिससे हम टेक्निकली कह सकते हैं कि उनके यहाँ रिसेशन शुरू हो गया है। एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया, वहां पर रिसेशन का नामो निशान नहीं है। सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी विच इज यूनाइटेड किंगडम, वहां पर भी जीडीपी नेगेटिव हुआ है, सो वहां पर भी देयर इज अ टेक्निकल रिसेशन जो ऑलरेडी शुरू हो गया है। सो अमंग ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया, बाकी हर कंट्री में मेजर मैक्रो प्रॉब्लम शुरू है या फिर रिसेशन इंडिकेटर्स है, एंड दैट मेक्स इंडिया इवन मोर बेटर पोजिशन। अगर इतनी सारी चीजें अच्छी है तो इंडिया में क्या मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मुझे बुलिश रहना चाहिए इंडियन इक्विटी पे? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर, क्योंकि इतना साधारण भी नहीं होगा, इतना सिंप्लीफाइड भी नहीं होगा, इसमें कुछ प्रोज एंड कॉन्स और होंगे जो हमें समझने हैं। सो मार्केट आउटलुक में आपको ये समझना जरूरी है, जो पिछला दशक था यानी कि 2010 से 2020 का जो दशक था, इन दिस एंटायर डेकेड देयर वर लॉट ऑफ रेट कट्स, मोस्टली मॉनेटरी पॉलिसी वाज इजी, दैट मींस लिक्विडिटी सरप्लस रखा गया था हर जगह पे, सो देयर वाज गुड इक्विटी रैली, many countries made money, US made money, India made money, so it was overall a very good situation. बट जो अभी डेकेड चल रहा है, इस डेकेड में इंटरेस्ट रेट कट अभी तक हुए नहीं है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, प्लस इंटरेस्ट रेट्स इसी लेवल पे पॉज हो चुके हैं फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। गोइंग फॉरवर्ड देयर आर चांसेस दैट इंटरेस्ट रेट इसी तरीके से बने रहे हायर लेवल पे। एट द सेम टाइम जब मैं इक्विटी की वैल्यूएशंस की बात करता हूँ तो वो इतने भी सस्ते नहीं है, इक्विटी वैल्यूएशंस भी बिकॉज ऑफ द बुल रैली काफी हाई हो चुके हैं, स्पेशली अगर हम स्मॉल और मिड कैप की बात करें। So overall, if interest rates are high, if equity valuations are towards the higher end, तो volatility होने के chances ज्यादा है। और इस volatility, इस उतार चढ़ाव को मैनेज करने के लिए हमें एक ऐसा पोर्टफोलियो चाहिए जो कि बहुत ही निम्बल हो इन नेचर। निम्बल का मतलब होगा कि बहुत ही इजीली मूव कर सके एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है, लिमिटेड नहीं होना चाहिए, कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, द फंड शुड बी अनकंस्ट्रेंट। दूसरा, ये ऐसा स्कीम होनी चाहिए जिसमें मैं सेक्टर्स के बीच में बहुत इजीली मूव कर सकूं, सेक्टर में वेटेज बढ़ा सकूं, गिरा सकूं, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिनेरियो। ये स्कीम ऐसी होनी चाहिए जहां पर मुझे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच में मूवमेंट करने में कोई तकलीफ ना हो। अगर मुझे लग रहा है कि आज स्मॉल और मिड कैप एक्सपेंसिव है तो मैं ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट कर पाऊँ। कल को अगर स्मॉल और मिड कैप में अच्छे वैल्यूएशंस मिलते हैं तो मैं फिर से स्मॉल और मिड कैप की तरफ अपना
वेटेज बढ़ा सकूं, इस तरीके की स्कीम होनी चाहिए। सो ऐसी कोई स्कीम क्या एग्जिस्ट करती है? लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। So there is a very famous quote by H. Jackson Brown Jr., who says, "When you can't change the direction of the wind, adjust your sail." यानी कि आप जब हवा का रुख नहीं बदल सकते, तो आप अपने सेल को एडजस्ट कर लीजिए। सो सेल इज समथिंग व्हाट वी यूज इन अ शिप। So what we are talking about here is to adapt, to be flexible, to move along with the market scenario. So इसी के ऊपर we let us understand कि business cycle क्या होता है। हर business की एक cycle होती है, हर product की एक cycle होती है, हमारे life की एक cycle होती है, जहां पर उतार चढ़ाव आते हैं। So जब हम business cycle की बात करेंगे, so there is a recession period जहां पर usually GDP growth हमें दिखता है कि कम होते जा रहा है। देन देर इज अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ते जाता है। एट द सेम टाइम हम लोग जब कंज्यूमर सेंटिमेंट देखते हैं, तो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बहुत ही लो रहता है, कंज्यूमर अपने परचेसेस पोस्टपोन करता है। जैसे कि 2020 का एग्जांपल लेते हैं, कोविड का पीरियड था। कोविड के पीरियड में जीडीपी गिर गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। एट द सेम टाइम अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं अपने घर के लिए, हो सकता है वो जरूरी सामान भी क्यों ना हो, जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन में से कुछ हो, या गाड़ी लेना है आपको, आपने ये सारे जो डिसीशंस है मोस्टली पोस्टपोन कर दिए। यू वांटेड टू पोस्टपोन दिस बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस मार्केट पे इतना स्ट्रांग नहीं था, आपको अपने जॉब की सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही थी शायद, बिकॉज ओवरऑल द कंट्री फॉर द फ्यू मंथ्स ऑफ कोविड वाज इन अ रिसेशन पीरियड। यही जब बिजनेस साइकिल चेंज होता है और रिसेशन से रिकवरी की तरफ बढ़ता है, तो हमें दिखता है कि थोड़ा थोड़ा करके डिमांड इंप्रूव हो रहा है, इक्विटी मार्केट्स में भी अच्छी मूवमेंट दिखने लगती है, और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इनकम लोगों की बढ़ना, ये सारी चीजें इंप्रूव होने के लिए दिखने लगती है। देन आता है हमारा एक्सपेंशन फेज। एक्सपेंशन फेज वेयर वी आर सॉलिड, लुकिंग सॉलिड, वेयर वी आर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। कंज्यूमर्स आर वेरी कॉन्फिडेंट, वो इतने कॉन्फिडेंट है दैट दे आर टेकिंग डेट टू फिल देयर परचेसेस। मुझे गाड़ी लेनी है, फ्लैट लेना है, घर लेना है, कुछ भी लेना है, तो मैं उसके लिए वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इन एडवांस परचेसेस कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग लोन टू परचेज दैट बिकॉज माई कॉन्फिडेंस इज हाई इन द इकोनॉमी एंड माई जॉब सिक्योरिटी इज ऑल्सो हाई। एम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज, लोगों की इनकम बढ़ चुकी है। दिस इज द एक्सपेंशन फेज। चौथा जो बिजनेस साइकिल का फेज है, जहां पर चीजें धीरे धीरे वीक होने लगती है, डिक्लाइन एक शुरू होने लगता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होने लगती है, जो कि हमने चाइना में देखा पिछले कुछ सालों में, इसे हम कॉन्ट्रैक्शन फेज कहते हैं। सो ओवरऑल आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से बिजनेस साइकिल पे है आज। आप रिसेशन में है, रिकवरी में है, एक्सपेंशन में है, या कॉन्ट्रैक्शन में? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है हम कौन से फेज में है? यू कैन जस्ट मेंशन इट। मीनवाइल हम लोग ये समझते हैं कि इससे फायदा क्या होगा। अगर आपने बिजनेस साइकिल आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप क्या पता लगा सकते हैं? आप सेक्टर्स पता लगा सकते हैं कि कौन से बिजनेस साइकिल में कौन सा सेक्टर सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है। ये कैसे होगा? सो हमने आपके लिए एक रेडीमेड चार्ट क्रिएट किया है, जो आपको इजीली बता देगा कि कौन से बिजनेस साइकिल में कौन सा सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हम रिसेशन में है, ठीक है, रिसेशन फेज, जैसे कि हमने कोविड की बात की थी, जहां पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत ही लो था, ऐसे समय में कौन से सेक्टर्स अच्छा करेंगे? कुछ लोगों को लगेगा यार रिसेशन में कोई भी सेक्टर अच्छा क्यों ही करेगा, सारे ही सेक्टर खराब करेंगे, बट दैट इज नॉट द केस। हर बिजनेस साइकिल में देर आर सम न्यू हीरोज जो ऊपर उठ के आते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट रिसेशन, टेक्नोलॉजी, देन एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल, यूटिलिटीज लाइक पावर, टेलीकॉम, ये सारे सेगमेंट्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? इसका बहुत ही सिंपल रीजन है कि भले ही मार्केट रिसेशन में हो, स्लो डाउन हो, ऐसा कोई भी कारण हो, आपके दवाई लेना आप बंद नहीं करते। अगर आपको कोई बीमारी है, आपको दवाई लेनी है, तो आप लेंगे इररेस्पेक्टिव कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। आपका पावर कंजम्पशन, you will continue to use your electricity
आप अपना फोन चार्ज करेंगे, आप अपना लैपटॉप यूज करेंगे, आप अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, आप अपना डेटा इस्तेमाल करते रहेंगे, टेलीकॉम का इस्तेमाल करते रहेंगे। इट डज नॉट डिपेंड कि आपका मार्केट कंडीशन, मार्केट सिचुएशन क्या है। आप एफएमसीजी गुड्स लाइक ऑयल या फिर टूथपेस्ट, आप ये सारी चीजें यूज करते रहेंगे जितनी मात्रा में आप पहले यूज करते थे। यानी कि ये कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां डिमांड चेंज नहीं होता। इवन if आपका बिजनेस साइकिल चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज नहीं होता। सो रिसेशन में जहां पर लोगों का कॉन्फिडेंस कम है, वहां लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए। And to find that stability, people are more positive in the FMCG, pharmaceutical, telecom, power, टेक्नोलॉजी, इन सब सेक्टर्स में लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, एंड दैट इज वाई ये सेक्टर्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट व्हाट अबाउट एक्सपेंशन फेज? अगर हम बात करें इंडिया की आज, तो इंडिया आज लगभग एक्सपेंशन फेज में दिख रहा है एज पर द इंडिकेटर्स। तो एक्सपेंशन फेज में क्या अच्छा काम करता है? यूजुअली क्या होता है कि जब इकोनॉमी बहुत ज्यादा एक्सपांड कर रही हो, तो आपका ध्यान सिर्फ बेसिक कमोडिटीज पे, बेसिक गुड्स पे नहीं होता, आपका ध्यान होता है कुछ और बेहतरीन चीजों पे, कुछ और बेटर चीजों पे। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल। टुडे इफ योर इकोनॉमी इज एक्सपांडिंग, अगर आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है, तो आप सोचेंगे कि यार एक गाड़ी तो होनी चाहिए घर में। So you will try to purchase expensive things, expensive goods, luxury goods. Automobile is one of them. You would try to book a flat, a house today. You would want to build a house today because आप ज्यादा खर्चा करने को रेडी है, आप ज्यादा कर्जा लेने को भी रेडी है, because you are positive on the economy today. So real estate, realty sector can do much better. एनर्जी, ऑयल एंड गैस, ये बहुत अच्छा करती है बिकॉज एक्सपेंशन फेज में प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है, नए कंपनीज ओपन होती है। सो ओवरऑल ऑयल एंड गैस का यूसेज भी काफी ज्यादा होता है। मेटल सेक्टर डज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, फाइनेंशियल्स, जो बैंक्स एंड फाइनेंस है, बिकॉज दे आर फ्यूलिंग द कंट्रीज ग्रोथ। सो फाइनेंशियल्स वो ईंधन है जो इस देश को आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज ये कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, ये पैसा प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम आगे बढ़ सके। सो फाइनेंशियल्स आर ऑल्सो वन ऑफ द सेक्टर्स जो एक्सपेंशन फेज में बहुत अच्छा करते हैं। सो ओवरऑल अगर मुझे पता चल गया कि मेरी बिजनेस साइकिल कौन सी है, तो मेरे लिए काम आसान हो जाता है। If I can identify the business cycle, I can identify the sectors which can do well. And अगर मैंने ये दोनों कर दिया तो मेरा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। सो आज हमारे बिजनेस साइकिल कौन सी है उसको पता लगाने का वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड इज जीडीपी देखना। जीडीपी ग्रोथ आपको काफी हद तक आइडिया दे देगा कि क्या आज बिजनेस साइकिल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, पीक पे ऑलरेडी आ चुकी है, रिसेशन में आ गई है, हो क्या रहा है। सो अगर आप हमारी बिजनेस साइकिल का पास्ट हिस्ट्री देखेंगे, जीडीपी ग्रोथ का पास्ट हिस्ट्री देखेंगे, सो यहाँ पर पिछले 23 से 24 सालों का चार्ट है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि 2001-2 के आसपास हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा था, एंड अगले 4-5 साल तक ये जीडीपी ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग था। दिस इज द बिगेस्ट बुल मार्केट ऑफ इंडिया। इसके बाद 2008 में जीडीपी ग्रोथ गिर गया बिकॉज देर वॉज ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ। सो यहाँ पर आपका बिजनेस साइकिल चेंज हुआ। फिर 2009 में रिकवरी आई, 2010 बहुत अच्छा गया। यहाँ पर अगेन हम देख सकते हैं रिकवरी पीरियड। रिकवरी पीरियड के बाद फिर से आया एक्सपेंशन पीरियड जहाँ पर जीडीपी फिर से एक्सपैंड हुआ। 2018 के बाद बहुत सारे क्राइसिस आए, क्रेडिट डिफॉल्ट्स आए इंडियन इकोनॉमी में, जिसे हम कहते हैं एनबीएफसी क्राइसिस। इस पीरियड के बाद कोविड भी आया, तो ये पूरा पीरियड वापस से देयर वाज अ फॉल, एंड कोविड के टाइम पे रिसेशन था। आफ्टर कोविड व्हाट वी हैव सीन इज वेरी क्विक रिकवरी, एंड टुडे वी आर अगेन इन एन एक्सपेंशन फेज। तो यानी कि आज हम एक्सपेंशन फेज में दिख रहे हैं। सो हमारा ध्यान फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे कि ऑटो, वाइट गुड्स, एनर्जी सेक्टर्स, मेटल्स, इन सब पे बहुत ज्यादा होना चाहिए। सो ओवरऑल क्योंकि आपको ये सब ना करना पड़े, इसलिए हमने एक रेडीमेड फंड क्रिएट किया है जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है टू मूव अक्रॉस द सेक्टर, जहां लार्ज मिड स्मॉल कहीं पे भी मूवमेंट किया जा सकता है, जहां पर बिजनेस साइकिल आइडेंटिफाई किया जाएगा
और डिपेंडिंग अपॉन कौन से बिजनेस साइकिल पे है हम लोग सेक्टर एलोकेशंस करेंगे और आपको बेस्ट से बेस्ट रिटर्न्स दिलाने का कोशिश करेंगे। इसमें हम कौन सा अप्रोच यूज करते हैं स्टॉक सिलेक्शन का, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, ये यूनिक है। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज म्यूचुअल फंड्स जो है बॉटम अप अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम लोग टॉप डाउन अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या होता है, इसे और बेहतर तरीके से कैसे हम समझ सकते हैं? सो हियर लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में दिया है अरेंज्ड मैरिज। सो टॉप डाउन अप्रोच जो है कुछ तरीके से देखा जाए तो एक अरेंज मैरिज जैसा दिखता है, जहां पर आप सबसे पहले कम्युनिटी देखते हैं कि ये कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उस कम्युनिटी के फिल्टर करने के बाद आप फैमिलीज देखते हैं उस कम्युनिटी में। जब आपको कोई फैमिली पसंद आ जाती है तो उस फैमिली के अंदर उसके बाद आप देखेंगे कि लड़का या लड़की कैसे है इस फैमिली के अंदर, एंड देन फाइनली शादी के लिए हाँ होती है और शादी होती है। सो दिस इज द अरेंज मैरिज कॉन्सेप्ट, जहां पर कम्युनिटी से फिल्टर होके फैमिलीज पे आते हैं, फैमिली से फिल्टर होके फिर ब्राइड या ग्रूम देखा जाता है, एंड वंस यू लाइक देम आफ्टर दैट यू आर एंगेज, उसके बाद आपकी शादी होती है। सिमिलरली जो हमारा स्टॉक है वो स्टॉक प्रोसेस कुछ इसी तरीके से काम करता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल और डोमेस्टिक इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, बिजनेस साइकिल कौन सा है। एक बार मुझे बिजनेस साइकिल पता चल गया, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से सेक्टर इस बिजनेस साइकिल में अच्छा काम कर सकते हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ये सारे सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन से स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं। ये करने में हमारे एनालिस्ट और फंड मैनेजर मिलके काम करते हैं। फाइनली हम लोग स्टॉक्स को वेटेजेस देंगे और हमारे फंड का पोर्टफोलियो रेडी होगा। सो दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज टॉप डाउन अप्रोच, और very few funds in the mutual fund industry use this approach for their funds. आज बिजनेस साइकिल जो आपको लग रहा है एक्सपेंशन फेज में है, उसके कुछ और इंडिकेटर्स देखते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड क्या ये एक्सपेंशन में कंटिन्यू रहेगा या वापस से इंडिकेटर चेंज होता हुआ दिख रहा है। सो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज भी बढ़ते रहेंगे। एट द सेम टाइम इट विल बूस्ट योर जीडीपी ऑल्सो, क्योंकि गवर्नमेंट का कैपेक्स इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज इंक्लूडेड इन जीडीपी। सो अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे एज अ परसेंटेज, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी हाई रहा है इन द पास्ट फ्यू इयर्स। 2024 का अगर आप एस्टिमेट देखेंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 36%, जो पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा हाई रहा। अगर इसके साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट देखूं, सो हायरिंग ट्रेंड्स हैव बीन ऑन एवरेज से ऊपर। सो ये डेटा नौकरी के इंडेक्स से आया है जो बता रहा है दैट ऑन एन एवरेज ज्यादा हायरिंग हो रही है इन द लास्ट फ्यू इयर्स। इफ आई लुक एट कंज्यूमर सेंटीमेंट जो है पॉजिटिव की तरफ है बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज में इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। सो क्या मैं कोई भी सेक्टर में इन्वेस्ट करूं मेरा काम हो जाएगा? अभी हमने देखा कि सही सेक्टर में इन्वेस्ट करना जरूरी है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से बिजनेस साइकिल में है। यहाँ पर उसका एक बहुत ही सही एग्जाम्पल है जो कि रियल डेटा पे बेस्ड है इन 2020 एंड 2021 टू 24। ये दो अलग अलग पीरियड लिए गए हैं। फर्स्ट पीरियड इज योर कोविड पीरियड जहां पर रिसेशन था। सेकेंड पीरियड इज योर रिकवरी एंड एक्सपेंशन फेज जो 2021 के बाद शुरू हुआ। तो अगर मैं रिसेशन फेज जो कोविड का फेज है उसमें देखूं तो हेल्थ केयर सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिया है, followed by technology, then consumption related sectors, एंड उसके बाद आपके फिर बाकी सारे सेक्टर्स आते हैं जिन्होंने बहुत ही कम रिटर्न्स दिए, जैसे कि ऑटो, कैपिटल गुड्स एटसेट्रा। फाइनेंस, ऑयल एंड गैस तो बहुत ही पीछे है बिकॉज इस पीरियड में बैंक्स का तो मोरिटोरियम पीरियड चल रहा था, लोग नया लोन ले नहीं रहे थे। ऑयल एंड गैस में भी बिकॉज एनर्जी डिमांड्स वर लो, ऑयल प्राइसेस क्रैश हो चुके थे, सो यहाँ रिटर्न्स बहुत ही कम थे।
But if I look at the recovery period and the expansion period after that, so आप देखेंगे कि sectors जो अच्छे करने लगे वो change हो गए. Industrials, capital goods, मेटल्स, ऑटो, ये सब ऊपर आ गए, जबकि हेल्थ केयर, एफएमसीजी, आईटी, ये सारे जो है बहुत नीचे आ गए, जो पिछले फेज में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे. सो दिस इज बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा वेयर वी हैव सीन ऑलरेडी कि जैसे बिजनेस साइकिल चेंज होता है आपका सेक्टर मूवमेंट भी जरूरी है. सो आज जो हमारा पोर्टफोलियो है वो किस तरफ पोजीशन है, कौन से सेक्टर्स उसमें सबसे ज्यादा है. सो हमने सबसे ज्यादा लिया है फाइनेंशियल्स, क्योंकि हम एक्सपेंशन फेज में है. देन वी आल्सो हैव गुड अमाउंट ऑफ ऑटो, टेलीकॉम विच हैज डन वेरी वेल, टेलीकॉम भी है हमारे पास. एंड अप्रोक्सीमेटली 13% जो है पोर्टफोलियो का वो कैश में भी है. अब आप लोग सोचेंगे कि हम कैश में क्यों बैठे. इट इज बिकॉज सम सेगमेंट्स, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, दैट इक्विटी का वैल्यूएशन, आज जो कीमतें हैं काफी सारे शेयर्स की, वो बढ़ चुकी है. ऐसे पीरियड में कैश रखना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, जिससे कि अगर ये कीमतों में सुधार आता है तो मैं कैश का इस्तेमाल करके और परचेज कर पाऊंगा. अगर आप टॉप पोर्टफोलियो स्टॉक्स देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहां पर आपको सबसे ज्यादा वेटेज बैंक्स में दिखेगा, फॉलोड बाय ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोल, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, इन सब सेक्टर्स में सबसे ज्यादा वेटेजेस है. सो दिस इज वन ऑफ द फंड जहां पर आप फॉरेन एक्सपोजर भी ले सकते हैं, लेकिन कंपल्शन नहीं है. आप ले सकते हैं, देर इज नो कंपल्शन. 20% तक आप फॉरेन एक्सपोजर भी ले सकते हैं. अभी इस वक्त समवेयर अराउंड 5.7% फॉरेन एक्सपोजर है. यानी कि एक तरह से देखा जाए तो अगर मैंने बिजनेस साइकिल फंड में इन्वेस्ट किया है तो शायद ही मुझे कोई और इक्विटी फंड की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ये एक ही फंड में ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो जाते हैं. अब अगर मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ और अगर मेरे कॉल सही जा रहे हैं, यानी कि मैं सही टाइम पे सेक्टर मूव कर पा रहा हूँ, सही टाइम पे बिजनेस साइकिल अच्छे से आइडेंटिफाई करके सेक्टर्स में वेटेजेस ले पा रहा हूँ, टॉप डाउन अप्रोच को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है, क्या मेरे परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, क्या मैं बेंचमार्क बीट करना चाहिए या नहीं. तो इस फंड का इंसेप्शन जनवरी 2021 में हुआ था. लगभग 3.5 साल हो चुके हैं इस पर्टिकुलर फंड को. एंड इस पूरे पीरियड में इस पर्टिकुलर फंड ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, लेटेस्ट परफॉर्मेंस का. जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसने लगभग 26% के हिसाब से रिटर्न जनरेट किया है, जो कि इसके बेंचमार्क निफ्टी 500 से ज्यादा है. अगर मैं पिछले 3 साल का भी डेटा देखूं तो अगेन ये अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है 5% कंपाउंडेड रिटर्न से. एंड अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो पिछले 1 साल का आउट परफॉर्मेंस बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा है. दिस गिव्स मी द कॉन्फिडेंस कि बिजनेस साइकिल फंड का जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, इट वर्क्स. जो कॉल्स हमने लिए हैं, जिस तरीके से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट ने इसे मैनेज किया है, दैट हैज आल्सो वर्कड वेरी वेल. सो अगर मैं इसको समराइज करूं तो आपके पास दो चीजें हैं. या तो आप खुद से करने की कोशिश कीजिए सारी चीजें. इससे क्या होगा कि आपको साइकिल कौन सा है, जिसके लिए आपको अलग अलग मैक्रो इंडिकेटर्स देखने पड़ेंगे कि आज इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है, जीडीपी कैसा चल रहा है, करेंसी कैसा चल रहा है, तेल का भाव क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड क्या है, एंड मेनी सच फैक्टर्स. इसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आज हम कौन से बिजनेस साइकिल में हैं. देन उस बिजनेस साइकिल के हिसाब से आपको सेक्टर्स देखने पड़ेंगे. देन उन सेक्टर्स में आपको स्टॉक रिसर्च करना पड़ेगा. एंड फाइनली आपको आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा. पर अगर इतना कुछ आप खुद से नहीं करना चाहते, because we understand that every one of you have lot of other jobs to do, lot of other work to do. So the whole point of investing into mutual fund is that आपको खुद से ये चीजें ना करना पड़े. There will be a dedicated fund manager who is able to do all these things and generate returns for you. So how can ICICI Prudential Business Cycle help in this? First, we will follow the top-down approach जो मैंने आपको just बताया. Then we will identify sectors. And ये sector में भी आप टेंशन मत लीजिए, हम nimble approach follow करेंगे. That is,
we can move in different sectors very quickly depending upon the changes in business cycle. So monthly rebalancing करेंगे हम, क्योंकि monthly mostly economic indicators हमें पता चलते. Based on that we will keep adjusting the allocation in sectors. अगर हमें कहीं पे जीरो करना है तो हम जीरो भी कर सकते हैं, कहीं पे अगर हमें वेटेज इंक्रीज करना है तो हम इंक्रीज भी कर सकते हैं. देयर इज कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी. एंड जब विद इन द फंड हम मूवमेंट करेंगे एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, हम एलोकेशन बढ़ाएंगे कम करेंगे, ऐसा कुछ भी करेंगे, तो वहां पर विद इन द फंड हमें कोई टैक्सेशन नहीं लगता. सो ये अनदर खासियत है म्यूचुअल फंड्स की, कि अगर आप खुद से स्टॉक्स में मूवमेंट करेंगे तो आपको टैक्स लगेगा, बट म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्टॉक मूवमेंट होती है वहां पर टैक्सेशन नहीं लगता. सिर्फ और सिर्फ जब आप म्यूचुअल फंड पूरा रिडीम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी आपको टैक्स लगता है. तो ये एक और फायदा है कि आपको इस वे से क्यों जाना चाहिए. सो ओवरऑल रिटर्न्स आप देख चुके हैं, बेंचमार्क आप देख चुके हैं. अगर आप इसे निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो हमने और बड़े मार्जिन से निफ्टी 50 को बीट किया है. हम निफ्टी 50 इसलिए बता रहे हैं बिकॉज काफी सारे लोग जो है निफ्टी 50 फॉलो करते हैं. अगर हम लोग एनएवी देखेंगे तो ये फंड 3.5 साल पहले लॉन्च हुआ था. इस पीरियड में ये डबल से भी ज्यादा हो चुका है. इसका एनएवी आज जो है अप्रैल 30 के हिसाब से 21.3 पे चल रहा है. सो 10 पे लॉन्च हुआ था, आज 21.3 पे चल रहा है. ऑलरेडी एनएवी डबल हो चुकी है इन लास्ट 3.5 years अप्रोक्सीमेटली. रिस्कोमीटर के हिसाब से क्योंकि ये इक्विटी फंड है, सो दिस विल हैव हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स, हाई वोलेटिलिटी, पर वो मैनेज करने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारे फंड मैनेजर की है. So I would like to end the session by saying that mutual funds are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully. सारी चीजें अच्छे से समझिए. अगर आप इन्वेस्टर है जिसका कोई आपको ये देखना है कि ये फंड आपके लिए सुटेबल है या नहीं है, तो आप अपने एडवाइजर से चेक करिए. आप अपने जो जानकार है, एक्सपर्ट है, सिर्फ उसी के साथ चेक करिए. खुद से डिसीजन ना ले अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो. सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. अगर कोई भी सवाल हो तो बिंदास बिल्कुल आप पूछिए. मैं कोशिश करूंगा that I can help you with all the answers today right now. तो वेरी नाइसली एक्सप्लेन भावेश. तो बहुत ही सरल भाषा में सारी चीजों को तुमने कवर कर किया है यहाँ पे. So I think as the question comes, there are few things which I would like to ask, and all the participants, अगर आपका कोई भी query है, request you to write it in the chat box. वहां से हम सारे questions लेंगे. सो भावेश, अभी के टाइम में अगर हम बात करते हैं, सो अगर मैं कैटेगरी की बात करूं, सो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, सो कैन यू टेल अस करंटली द एक्सपोजर, व्हाट द एक्सपोजर इज इन दिस पर्टिकुलर स्कीम? So जैसे कि हमने देखा almost 13% of the scheme is into cash today. So यानी कि somewhere around 84 से 87% जो है इक्विटी में इन्वेस्टेड है. इस 84% में अप्रोक्सीमेटली 70% से ज्यादा लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है. यानी कि टोटल एक्सपोजर टू मिड एंड स्मॉल कैप इज लेस देन 15%. Great, nice. There are few questions which are there with us. So one of the investor would like to ask, like, how to identify business cycle. So if you can go back to the same screen which you have explained earlier, Bhavesh, and श्योर. सो देखिए कि बिजनेस साइकिल आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा एक्सपर्टीज चाहिए. हमें कुछ मैक्रो इंडिकेटर्स फॉलो करना बहुत जरूरी है. देर आर सर्टन पैरामीटर्स जो अगर हम देखेंगे तो हमें उससे आइडिया आ जाएगा कि आज हम कौन से बिजनेस साइकिल में हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोविड का एग्जाम्पल दिया था, दैट इन कोविड पीरियड जीडीपी श्रिंक हो चुका था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हैड रिड्यूस्ड, विच वर टेलिंग मी दैट दीज आर सम साइंस ऑफ रिसेशन. इससे ज्यादा इजी तरीके से अगर बिजनेस साइकिल आइडेंटिफाई करना है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है विच इज योर जीडीपी ग्रोथ. जीडीपी ग्रोथ आपको काफी अच्छा इंडिकेशन दे सकता है दैट व्हाट इज आवर बिजनेस साइकिल टुडे. आई एम नॉट सेइंग कि ये इकलौता इंडिकेटर है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट इंडिकेटर टू अंडरस्टैंड. जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले 22-23 सालों में किस तरीके से जीडीपी ग्रोथ
मूवमेंट हुई है, जिससे कि हमें एक आइडिया आता है कि आज हम कौन से बिजनेस साइकिल। If I look at the GDP growth in the last few quarters in India, our GDP growth has been robust, which clearly gives me a signal कि आज हम expansion phase में हैं. I hope this answers your question. Yes, Bhavesh. And so follow-up question is like who will do it? So yes, there is a fund manager. So fund manager is the one who is doing all those things and like they decide in which cycle we are and basis that they are investing. Uh, I would like to Bhavesh, add we have one more point here. yes, जो Bhavesh, go on. question था कि who will do it? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, who will do it? Because of course investor should be confident कि ये जो भी identify कर रहा है business cycle, that person should be an expert in doing this. So for us, I would like to highlight this, that this is probably one of the only equity mutual fund in the entire industry जहां पर एक debt fund manager भी है. So it is our debt CIO, Mr. Manish Vanthia, who is in charge of identifying the business cycle. Now, you might wonder why a debt fund manager is doing this. So, a debt fund manager has the best expertise when it comes to understanding macro parameters. So, आप जितने भी macro indicators देखते हैं दुनिया से related, ये सब identify करना इन सबसे बेहतरीन जो है एक debt fund manager करता है. Who better than our debt CIO, Mr. Manish Bantia, to do this? So although your sector, stock selection, everything is done by equity fund managers, which includes our deputy CIO, Mr. Anish Tawakle, and our senior fund manager, Mr. Lalit Kumar. पर ये जो बिजनेस साइकिल आइडेंटिफाई करने का काम है, ये हमारे डेट सीआईओ मिस्टर मनीष बंतिया करते हैं. Great. One common question. So what is the scheme name? So the scheme name is ICICI Prudential Business Cycle Fund. This is the scheme जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. And we are getting some questions in YouTube also जहाँ पे उन्होंने नाम पूछा था. So that's why I'm just taking the name again. ICICI Prudential Business Cycle Fund जिसके बारे में सारा डिस्कशन अभी तक हुआ है. One investor is asking like is this the right time to invest in this fund, Bhavesh? राइट. सो जैसे कि हमने अभी इंडिकेटर्स देखे कि इंडिया इज लुकिंग सॉलिड, इंडिया इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग टुडे. ग्लोबली थोड़ा सा वीकनेस है एंड एलिवेटेड इक्विटी लेवल्स है. सो हमने कुछ ये वाले स्लाइड में सम अप किया था दैट ऐसे पीरियड में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए. बिकॉज इंडिया इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग तो मैं आज इक्विटी पे नेगेटिव नहीं हो सकता. बिकॉज देर इज वीकनेस ग्लोबली, तो मुझे बहुत ही फ्लेक्सिबल फंड चाहिए जो इजीली मेरा पोजीशन मूव कर पाए. ये सारी क्वालिटीज, सारी खूबियां एक फंड में होना थोड़ा मुश्किल है. बट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड, इट हेल्प्स यू टू डू एग्जैक्टली द सेम थिंग. इट इज निम्बल इन इट्स अप्रोच, इट कैन मूव बिटवीन सेक्टर्स स्विफ्टली. और ये जो है आपको इस पर्टिकुलर मार्केट सिनेरियो में बेस्ट तरीके से नेविगेट करने में हेल्प कर सकता है. कुछ इस तरीके से जहां पर हमने ये कोट भी देखा था that if you can't change the direction of the wind then adjust your sail. So हम मार्केट का रुख नहीं बदल सकते, हम ग्लोबल रिसेशन और ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं. Okay. And what will be the maximum percentage per script, Bhavesh? Hello. I think because of some reason Bhavesh is logged out. We'll just wait for him. Am I audible? Are you there, Bhavesh? Okay. Yes, yes, I am here. I'm here. Acha. So one investor is asking like, what will be the maximum percentage per script once selected? Okay, So I think question is maximum percentage. maximum weightage. Yeah. Right, right. I understand that. So in a diversified equity fund, we don't go beyond 10%.
अनलेस वो कोई एक आध महीने में मार्क टू मार्केट की वजह से बढ़ा है, वी कॉन्शियसली टेक दिस डिसीजन टू नॉट गो बियॉन्ड 10% इन वन स्क्रिप्ट टू मैनेज द कॉन्सेंट्रेशन रिस्क. सो आप यही देखेंगे दैट हम 10% से ऊपर नहीं जाएंगे एक स्क्रिप्ट में. And another question is there with us, like how it is different from the momentum stocks. It's very different from a momentum stock. So what we usually see is that जो अच्छी rally कर रहे हैं already in the last 6 months or 1 year, that automatically gets added in a momentum stock. But in a business cycle fund, it is not necessary कि जो sector हम select कर रहे हैं या जो stock हम select कर रहे हैं वो already rally करते हुए आए. Because what I'm trying to do is I'm trying to identify the business cycle कि कौन सी अभी साइकिल चल रही है और उसके हिसाब से मैं सेक्टर फॉलो कर रहा हूँ. सो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि 2020 में हेल्थ केयर वॉज डूइंग वेरी वेल. सो क्या मैं 2021 में फिर से हेल्थ केयर ही लूंगा? सो अगर मेरे पास मोमेंटम स्टॉक होते तो मैं हेल्थ केयर के स्टॉक रिपीट करता, पर क्योंकि ये बिजनेस साइकिल देख के इन्वेस्ट करता है तो ये हेल्थ केयर में ज्यादा वेटेज नहीं रखेगा. सो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दिस इज वेरी डिफरेंट from a momentum based investing. Similarly, you can see technology did very well in 2020. So did I invested again in technology in 2021? So 2021 में exposure to my to technology was 0% in business cycle fund. This was a conscious decision taken by the fund manager कि टेक्नोलॉजी जो इतना अच्छा रैली कर चुका था, जो इंडेक्स में इतना बड़ा वेटेज रखता है, उसको आपने 0% रखा. So that is how the fund works. It does not follow momentum. It is very different from any momentum strategy. Yeah, we have few more questions and we'll take only few. There are many questions which are coming up. So one of the question is like, what is the minimum investment amount in this? And one customer has invested lump sum in this scheme, but वो पूछ रहे हैं कि Yes. इसमें SIP करना कैसा रहेगा? So for the first question, minimum investment amount is 5,000 rupees. आप 5,000 से lump sum investment start कर सकते हैं. For the second question, will this be a good SIP scheme? Personally, I think it will be a very good SIP scheme. लमसम आप डेफिनेटली डाल सकते हैं, बट अगर आपको इसमें SIP करना है लंबे समय पर, बिकॉज दिस इज इक्विटी फंड विच इज वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड दिस थीम इज एवरग्रीन इन नेचर. ये मुझे टैक्टिकल कॉल नहीं लेना पड़ता है जब मैं बिजनेस साइकिल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज विद इन द फंड इटसेल्फ सारे मैनेजमेंट हो रहा है. SIP के लिए ऐसे ही स्कीम्स की जरूरत होती है. सो आई थिंक दिस विल बी अ वेरी गुड SIP स्कीम एज. Great. Another question is, does this fund include various themes like manufacturing or infrastructure or something like China plus one, etc., or themes which are not represented in any other ICICI Pru AMC funds? So आपको वो थीम्स का हिंट दिख सकता है. Although my logic would always remain कि मैं बिजनेस साइकिल आइडेंटिफाई करूं और उसके हिसाब से ही सिलेक्शन करूं, बट इस बीच में जैसे कि आज अगर मैं एक्सपेंशन फेज में हूं एंड इफ आई एम पॉजिटिव ऑन कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, एनर्जी, तो आपको ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग थीम का हिंट इसमें दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम का हिंट इसमें दिख रहा है. कल को अगर मैं रिसेशन फेज में जाता हूँ जहां पर आई एम हैवी ऑन FMCG, फार्मास्यूटिकल, पावर, टेलीकॉम, तो आपको इसमें डिफेंसिव या कंजम्पशन थीम दिख के आ सकती है. जिसमें जो फॉरेन एक्सपोजर मैंने लिया है वहां पर आपको चाइना वेटेज दिख सकता है. सो दिस इज यू कैन से अ वेरी फ्लेक्सिबल थीम जिसके अंदर आपको दूसरी थीम्स का हिंट फ्रॉम टाइम टू टाइम दिख सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या यहाँ पर मार्केट सिनेरियो बन रहा है. सो अगर मैं कोई एक स्पेसिफिक स्मॉल थीम में इन्वेस्ट करूं तो वहां पर मुझे एक्टिव कॉल्स लेने पड़ेंगे टू मूव, कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है. बिजनेस साइकिल के अंदर मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज विद इन द फंड इट विल ऑटोमेटिकली गेट मूव. So I think Bhavesh, we have covered most of the questions which were relevant, and
definitely I request all the participants and all the investors to get in touch with your relationship manager. And the good thing why we have done this webinar, because this is the scheme which is recently added in our research recommended schemes. So that's how we did this webinar. And please be in touch with your relationship manager to know how to invest through us. And if there'll be any problem, definitely they'll help you. Thank you, Bhavesh. Thank you for coming here and sharing this insightful details. Thanks, Diwakar, for this opportunity. Thank you, audience, for asking those questions. I hope I was able to add some value. All the best, and please invest correctly. Please consult experts before investing. Thank you so much. Have a great day. Yeah, thank you, everyone.